السلام علیکم ناظرین، آج میں معلومات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کے بارے میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کوئی اولاد ان کے نہیں، البتہ مغیرہ رضی اللہ عنہ سے بعضوں نے ایک لڑکا یحییٰ لکھا ہے اور بعضوں نے انکار کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے خود وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح بھانجی سے کر دیا جائے۔ ان کا انتقال سن 50 ہجری میں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ تھی، جو اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے 3 برس بعد پیدا ہوئی تھی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 33 برس کی تھی، اور بعضوں نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کو حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے بڑا بتایا ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے چھوٹی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے نکاح ہوا تھا۔ جب سورہ تبت نازل ہوئی تو ابو لہب نے ان سے اور ان کے دوسرے بھائی عتیبہ سے، جس کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا تھیں، یہ کہا کہ میری ملاقات تم دونوں سے حرام ہے۔ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ اس پر دونوں نے طلاق دے دی۔ یہ دونوں نکاح بچپن میں ہوئے تھے، رخصتی کی نوبت بھی نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد فتح مکہ پر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے خاوند عتبہ مسلمان ہو گئے تھے، مگر بیوی کو پہلے ہی طلاق دے چکے تھے، اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے عرصہ ہو چکا تھا۔ حضرت عثمان اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ نے دونوں مرتبہ حبشہ کی ہجرت کی تھی، جس کا بیان پہلے باب نمبر 10 پر گزر چکا ہے۔ اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی حضرت کا حکم ہونے والا ہے، مدینہ منورہ میری ہجرت کی جگہ ہوگی، تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ طیبہ کی ہجرت شروع کر دی۔ اسی سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی یہ دونوں حضرات بھی مدینہ طیبہ پہنچ گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی لڑائی میں تشریف لے جانے لگے تو حضرت رقیہ بیمار تھیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کی تیمارداری کے واسطے مدینہ چھوڑ گئے۔ بدر کی خوشخبری مدینہ طیبہ میں اس وقت پہنچی جب یہ حضرات حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کو دفن کر کے آ رہے تھے، اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دفن میں شرکت نہ فرما سکے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے پہلے خاوند کے یہاں رخصتی بھی نہیں ہو سکی، تو اولاد کا کیا ذکر ہے۔ البتہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ایک صاحبزادے جن کا نام عبداللہ تھا، حبشہ میں پیدا ہوئے تھے، جو اپنی والدہ کے انتقال کے بعد تک زندہ رہے اور 6 سال کی عمر میں سن 4 ہجری میں انتقال فرمایا، اور بعض نے لکھا ہے کہ اپنی والدہ سے 1 سال پہلے انتقال کیا۔ ان کے علاوہ کوئی اور اولاد حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ سے نہیں ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ تھیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ ان میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ
में से कौन सी बड़ी थी? अक्सर की राय यह है कि उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला बड़ी थी। अव्वल उतैबा बिन अबिल हब से निकाह हुआ मगर रुखसती नहीं हुई थी कि सूरह तब्बत यदा के नाजिल होने पर तलाक की नौबत आई, जैसा कि हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला के बयान में गुजरा। लेकिन इनके खाविन तो बाद में मुसलमान हो गए थे, जैसा कि गुजर चुका, और उनके खाविन उतैबा ने तलाक दी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में आकर निहायत गुस्ताखी, बेअदबी और नामुनासिब अल्फाज भी जुबान से निकाले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की कि या अल्लाह, अपने कुत्तों में से एक कुत्ता इस पर मुसल्लत फरमा। अबू तालिब उस वक्त मौजूद थे। बावजूद मुसलमान न होने के सहम गए और कहा कि उसकी बद्दुआ से तुझे खलासी नहीं। चुनांचे उतैबा एक मर्तबा शाम के सफ़र में जा रहे थे। उसका बाप अबू लहब बावजूद सारी अदावत और दुश्मनी के कहने लगा कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ की फिक्र है। काफिले के सब लोग हमारी खबर रखें। एक मंजिल पर पहुँचे और वहाँ शेर ज़्यादा थे। रात को तमाम काफिले का सामान एक जगह जमा किया और उसका टीला सा बनाकर उस पर उतैबा को सुलाया और काफिले के तमाम आदमी चारों तरफ सोए। रात को एक शेर आया। शेर ने सबके मुंह सूंघे। उसके बाद एक जकन यानी छलांग लगाई और उस टीले पर पहुंचकर उतैबा का सर बदन से जुदा कर दिया। उसने आवाज दी मगर साथ ही काम तमाम हो चुका था। बाज मुवर्रिखीन ने लिखा है कि यह मुसलमान हो गया था और किस्सा पहले भाई के साथ पेश आया। बहरहाल हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला और हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला के पहले शौहरों में से एक मुसलमान हुए। दूसरे के साथ ये इबरत का वाक़या पेश आया। इसी वास्ते अल्लाह वालों की दुश्मनी से डराया जाता है। खुद अल्लाह जल्ले शानहू का इरशाद है, मन आदा ली वलियन फ़क़द अज़नतुहु बिल हर्बी। जो मेरे किसी वली को सताए उसको मेरी तरफ से लड़ाई का ऐलान हो। हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला के इंतकाल के बाद रबी अव्वल सन 3 हिजरी में हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला का निकाह भी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला से हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैंने उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला का निकाह आसमानी बह के हुक्म से उस्मान रज़ियल्लाहु ताला से किया। बाज रिवायत में हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला और हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला दोनों के मुतालिक यही इरशाद फरमाया। पहले खाविंद के यहाँ रुखसती भी नहीं हुई थी। औलाद कोई हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला से भी नहीं और शाबान सन 9 हिजरी में इंतकाल फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इंतकाल के बाद इरशाद फरमाया कि अगर मेरे 100 लड़कियां होती तो इंतकाल करती तो इसी तरह एक दूसरे के बाद सब का निकाह हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला से करता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी साहबजादी जन्नती औरतों की सरदार हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला हैं, जो उम्र में अक्सर मुअर्रिखों
के नज़दीक सबसे छोटी हैं। नबूवत के 1 साल बाद जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 41 साल की थी, पैदा हुई और बाज ने नबूवत के 5 साल पहले 45 साल की उम्र लिखी है। कहते हैं कि उनका नाम फातिमा रज़ियल्लाहु इल्हाम या वह से रखा गया। फतम के मानी रोकने के हैं, यानी ये जहन्नम की आग से महफूज हैं। सन 2 हिजरी मुहर्रम या सफ़र या रजब या रमजान में हजरत अली करमुल्लाह वजू से निकाह हुआ और निकाह से 7 माह और 15 दिन बाद रुखसती हुई। ये निकाह के वक्त 15 साल 5 माह की थी। इससे भी 41वें साल में पैदाइश यानी पहले कौल की तायद होती है और हजरत अली रज़ियल्लाहु की उम्र 21 साल 5 माह या 24 साल 1.5 माह की थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम साहबजादियों में इनसे ज़्यादा मोहब्बत थी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र को तशरीफ़ ले जाते तो सबसे आखिर में इनसे रुखसत होते और जब सफ़र से वापस आते तो सबसे पहले इनके पास तशरीफ़ ले जाते। हजरत अली करमुल्लाह वजू ने अबू जहल की लड़की से दूसरे निकाह का इरादा फरमाया तो इनको रंज हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फातिमा मेरे बदन का टुकड़ा है, जिसने उसको रंज पहुंचाया उसने मुझको रंज पहुंचाया। इसलिए हजरत अली रज़ियल्लाहु ने उनकी ज़िंदगी में कोई निकाह नहीं किया। आपके विसाल के बाद आपकी भांजी उम्मामा रज़ियल्लाहु से निकाह किया, जिसका जिक्र हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु के बयान में गुजरा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 6 महीना बाद हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु बीमार हुई और एक रोज़ खादिमा से फरमाया कि गुस्ल करूँगी, पानी रख दो। गुस्ल फरमाया और नए कपड़े पहने। फिर फरमाया कि मेरा बिस्तर घर के बीच में कर दो। उस पर तशरीफ़ ले गईं और किबला रुख लेटकर दाहिना हाथ रुखसार के नीचे रखा और फरमाया कि बस अब मैं मरती हूँ। ये कहकर विसाल फरमाया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का सिलसिला यहीं से चला और इंशाअल्लाह क़यामत तक चलता रहेगा। इनकी 6 औलाद, 3 लड़के 3 लड़कियां हुई। सबसे अव्वल हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला निकाह से दूसरे साल में पैदा हुए। फिर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला तीसरे साल सन 4 हिजरी में। फिर हजरत मोहसिन पैदा हुए, जिनका इंतकाल बचपन ही में हो गया। साहबजादियों में से हजरत रुकैया का इंतकाल बचपन में हो गया था। इसी वजह से बाद मुअर्रिखीन ने इनको लिखा भी नहीं। दूसरी साहबजादी हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु का पहला निकाह हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन से हुआ, जिनसे एक साहबजादे जैद रज़ियल्लाहु और एक साहबजादी रुकैया पैदा हुई। हजरत उमर रज़ियल्लाहु के विसाल के बाद उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु का निकाह औन बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु से हुआ। उनसे कोई औलाद नहीं हुई। उनके इंतकाल
के बाद उनके भाई मोहम्मद बिन जाफर से हुआ। उनसे एक लड़की पैदा हुई जो बचपन ही में इंतकाल कर गई। उनके इंतकाल के बाद उनके तीसरे भाई अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ियल्लाहु से हुआ। उनसे भी कोई औलाद नहीं हुई और उन्हीं के निकाह में हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु का इंतकाल हुआ और उसी दिन उनके साहिबजादे जैद रज़ियल्लाहु का भी इंतकाल हुआ। दोनों जनाजे एक साथ उठे और कोई सिलसिला औलाद का उनसे नहीं चला। ये तीनों भाई वहीं अब्दुल्ला और औन और मोहम्मद रज़ियल्लाहु हैं, जिनका किस्सा छठे बाप के 11 पर गुजर चुका है। ये हजरत अली के भतीजे और जाफर तैयार के साहिबजादे हैं। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु की तीसरी साहिबजादी हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु थी, जिनका निकाह अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ियल्लाहु से हुआ और दो साहिबजादे अब्दुल्ला और औन रज़ियल्लाहु पैदा हुए और उन्हीं के निकाह में इंतकाल फरमाया। उनके इंतकाल के बाद अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ियल्लाहु का निकाह उनकी हमशीरा रज़ियल्लाहु उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु से हुआ था। ये औलाद हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु से हैं, वरना हज़रत अली करमुल्लाह वजहू का दूसरी बीवियों से जो बाद में हुई और भी औलादें हैं।